In previous chapter, we completed what all terminology, and uh, even I have explained the law of dominance also. So Mendel proposed how many laws? Three laws. What that three laws? One law is called as a law of dominance. So I think all of you may have read this topic in vacation period, that is in yesterday holiday. So Mendel's laws of inheritance, what? That is the law of dominance, first one. So law of dominance means what? When a cross between whom takes place between two pure parents by considering what? Either one or more pair of contrasting character. So हम लोगों को law of dominance के लिए cross between किस में करना है? Parents में. Between the parents by considering कितने characters किए हम लोगों ने? One or more pair of contrasting character. So now that character which we are selecting, that character either present in F1 generation or may not appear in F1 generation. So if the character which is appear in F1 generation, then that character is called as a dominant. And the character which is not appear, which is suppress, उसको indirectly not appear को हम दूसरा भी word बोल सकते हैं, that is called as a suppress. So जो character appear नहीं होगा, जो suppress होगा, उसे हम कहेंगे recessive character. So this is one law which may be asked to you in board exam 1 marks के लिए. अब मैं क्या सोच रही हूँ, हम लोग अभी 2 चैप्टर के ऊपर टेस्ट रखेंगे और आप लोग मुझे इसका व्हाट्सएप पे पिक भेजना जो जो टेस्ट अटेंड करेंगे. सबको टेस्ट लिखना है, एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स लेक्चर कंटिन्यूअसली लिसन कर रहे हैं यहाँ पे. Okay, now next law, law of segregation or law of purity of gametes. So what is law of segregation? That I'm going to explain to all of you. All of you have to learn this law. So law of segregation or law of purity of gametes means what? When F1 generation forms, the gametes or gametes of that allele, the allele segregate from each other and enter in different gametes. तो यहाँ पे क्या होते हैं? When F1 जनरेशन फॉर्म, तो कोई F1 जनरेशन फॉर्म करना पड़ेगा हमें. तो हम कैसे फॉर्म करेंगे? कोई भी कैरेक्टर लेते हैं. अभी हम फ्लावर का पोजीशन लेते हैं. सपोज एक्सिलरी मतलब ए क्रॉस विथ किसके साथ आता है? टर्मिनल. तो इसलिए मैंने क्या लिया? स्मॉल ए. क्यों हम लोगों ने स्मॉल ए लिया है? कैन एनीवन गिव मी रीजन व्हाई आई हैव हियर रिटन स्मॉल ए? प्लीज गिव मी द आंसर बाय चैट. व्हाई आई रिटन हियर कैपिटल ए for what position? That position is called as a auxiliary. And for terminal position, I written here small a. What is the reason for that? Why I written here small a? Any one of you? Yes, by chat only. Just try to give me the answer. What do you think? Why I written here small a? Any one of you? I doesn't. हाँ. Small a have some reason. See, capital A that is dominant. So we write here a that is called as a dominant character. But the character which is not appear, that is recessive. That is represented by small a. Now suppose auxiliary red flower. हमने लिखा यहाँ पे red flower. तो red flower represented by capital R. और यहाँ पे रेड फ्लावर के अपोजिट सपोज व्हाइट फ्लावर है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर. So now these are called as a parents. Now they have to produce the F1 hybrid first. So what is gamete for this? Capital A, capital R. Can all of you getting my point? See, आपको अभी थोड़ा धीरे धीरे 2-3 बार सुना है तो समझ में आ रहा है ना कि हम गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? कैपिटल A, कैपिटल R. यहाँ पे गैमेट्स क्या आएगा? स्मॉल a, स्मॉल r. Now the fusion of that gametes, इसका यहाँ पे क्या होगा? Fusion. That process is called as a fertilization. So now here capital A, small a, capital R, small r. Now this is called as a genotype. इसे हमने क्या नाम दिया है? Genotype.
but this progeny, this organism, this offspring is of what generation? F1 generation. तो मैंने 5 मिनट्स आपको किस में यूज किए? ये F1 जनरेशन माने क्या बताने के लिए। अब लाइन क्या है देखो, तो हमको कोई भी लाइन को थोड़ा डेप्थ में जाएंगे ना तो वो पूरा लॉ याद होता है। When a F1 जनरेशन फॉर्म्स, अब कौन सा जनरेशन फॉर्म किया हम लोगों ने? F1 जनरेशन। Now when a F1 generation forms, the gametes, the alleles segregate from each other. अब the gametes from the alleles, अब यहाँ पे gametes separate होंगे। कौन सा separate होगा? कैपिटल A can be paired with capital R, कैपिटल A can be paired with small r. यहाँ हमें क्या दिख रहा है ऊपर पेरेंट्स में कि कैपिटल A ऑलवेज पेयर विद किसके साथ हो रहा है? कैपिटल R। कैपिटल A ऑलवेज पेयर विद कैपिटल R। यहाँ क्या दिख रहा है? स्मॉल a ऑलवेज पेयर विद स्मॉल r। लेकिन when this F1 generation we get, so there is no possibility that is always capital A should be paired with capital R only. So in F1 generation, capital A has a capacity to pair with capital R as well as capital A can pair with small r also. So next line देखो, when a F1 generation forms, F1 generation form हो रही है, the gametes, the alleles segregate. Gametes from the alleles are segregate. From whom? From the each other. ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पे और क्या आएगा? स्मॉल a कैपिटल R और क्या आएगा? स्मॉल a स्मॉल r. सो क्या कहाँ है यहाँ पे? The gametes from, फिर से देखो, gametes फॉर्म हो गए। When a F1 generation forms the gametes, the alleles segregate from each other. ये alleles बोलो, कैरेक्टर बोलो, वो सेपरेट हो गए and enter in different gametes. वो कौन से gametes में चले गए? different gametes में। मतलब कैपिटल A कैपिटल R के साथ ही नहीं रहा, कैपिटल A किसके साथ चला गया? स्मॉल r. तो the gametes form are pure in that they carry only one allele each. तो यहाँ पे क्या होता है? ये मिक्सिंग नहीं होता, मतलब ये जो एक्सिलरी है वो टर्मिनल के साथ मिक्स होके कुछ न्यू कैरेक्टर नहीं बनता। या तो मैं और बताती हूँ आपको, टॉल वैरायटी क्रॉस विथ किसके साथ होता है? ड्वार्फ वैरायटी। तो टॉल का जीनोटाइप क्या आएगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। इसका जीनोटाइप क्या आएगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। इसके गैमेट्स क्या आएंगे? कैपिटल टी। इसके गैमेट्स क्या आएंगे? स्मॉल टी। इन दोनों का क्या हुआ है? फ्यूजन हुआ और प्रोजेनी क्या बन गई? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ऐसा नहीं हुआ कि ये टॉल प्लांट मिक्स विथ किसके साथ हुआ था? ड्वार्फ प्लांट। तो टॉल मतलब बहुत ऐसा लंबा पेड़ है सपोज, और एक एकदम छोटा है। यहाँ पे हमने दूसरा छोटा ड्रॉ किया। तो अभी ऐसा नहीं हुआ, हमें मिडल वाला प्लांट नहीं मिला, इस वैरायटी का प्लांट नहीं मिला। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो भी प्लांट मिला है वो F1 जनरेशन में वो टॉल ही मिला। समझ में आया क्या? बट जब ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा तो टॉल और ड्वार्फ सेपरेट होंगे। तो इसका मतलब क्या? गैमेट्स प्योर ही रहेंगे, गैमेट्स कभी एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। इसका और गुड एग्जांपल देते हैं, सपोज हम लोग रेड कलर व्हाइट कलर के साथ मिक्स करेंगे तो इसका कौन सा कलर आएगा? पिंक कलर आएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, रेड रेड ही अपीयरेंस दिखा रहा है। तो दैट मीन्स व्हाट? इन F1 जनरेशन दो दे मिक्स विथ ईच अदर बट दे सेपरेट, वो सेपरेट हो रहे हैं at the time of what formation? Gamete formation. So this law is called as a law of purity of gametes. इसलिए इसे बोलते हैं प्यूरिटी, वो अपना प्यूरिटी मेंटेन करके रखता है। इसका नेचर का एग्जांपल देखते हैं। देखो, बारिश है ना, कहीं पे भी गिरे, एक नॉर्मल नॉमिनल एग्जांपल बोल रही हूँ, सपोज वो पॉन्ड में गिर जाए या तो लेक में गिर जाए या तो सी वाटर में गिर जाए। टेम्परेरी अगर वो पॉन्ड में गिरता है तो उसे पॉन्ड का नेचर मिलेगा, अगर वो सी वाटर में गिरेगा तो वो सॉल्टी हो जाएगा। और सपोज वो गटर के वाटर में गिर गया, जो नाला बह रहा है ना उसमें गिर गया,
लेकिन इवापोरेशन होने से उसका प्यूरिटी ऑटोमेटिकली निकलेगा, वो सॉल्ट लेके ऊपर नहीं जाएगा। सी वाटर में अगर वो गिरा है तो वो उसका प्यूरिटी मेंटेन करके रखेगा। गटर में भी गिरा है तो कीचड़ नीचे ही रहेगा, उसमें से वेपोराइजेशन होके ओनली वाटर वेपर ही बाहर निकलेगा। तो इसको कहते हैं प्यूरिटी। तो हमारा नेचर भी, जस्ट सॉरी हाँ फॉर 2 मिनट्स के लिए, तो हमारा नेचर भी ऐसा ही होता है। भले हम टेम्पररी बैड बिहेवियर करेंगे लेकिन हम अंदर से अच्छे ही रहते हैं, बस हमें वो अच्छाई ढूंढनी है। ये मेंडल बता रहा है। मेंडल का ऑब्जर्वेशन था, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, कि व्हेन, अब आप लर्न करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, सबके साथ कंबाइन करो। व्हेन F1 जनरेशन फॉर्म्स, जब F1 जनरेशन फॉर्म हो गई है, of what, of the gametes, the alleles segregate from each other, alleles segregate होंगे and enter in different gametes, वो दूसरे दूसरे gametes में चले जाएंगे। that means what, the gametes formed are pure, वो gametes कैसे रहते हैं, pure, in that they carry only one allele each। कौन सा allele लेके जाएंगे, या तो tall लेके जाएंगे या तो कौन सा लेके जाएंगे, dwarf। ओके तो ये हुआ लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, या तो उसे दूसरा नाम दिया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इट इज कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो अभी मैंने वही बोला कि जरूरी नहीं ना, अभी हमें तो कैसा है, पीने के लिए हम ड्रिंकिंग वाटर कौन सा प्रेफर करते हैं, मोस्टली आरओ का वाटर प्रेफर करेंगे, प्योर वाटर करेंगे। लेकिन नेचर, बारिश तो ऐसा नहीं होता ना, बारिश ऐसा सोचता है क्या, नहीं नहीं मैं इधर ही गिरूंगा, मुझे सी वाटर में ही जाना है, मुझे सी वाटर में नहीं जाना है, मेरा टेस्ट बदलता है इसलिए मैं बारिश सी वाटर में गिराऊंगा ही नहीं, मुझे लेक में ही जाना है, वहां पे बहुत अच्छा ठंडक मिलती है। तो बारिश तो ऐसा डिसाइड नहीं करता ना। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे भी गैमेट्स का ऐसा होता है, मतलब पेयरिंग वो अपने आप डिसाइड करता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मैं किसके साथ फ्रेंडशिप बनाऊं, लेकिन फ्रेंडशिप बनाने के चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं, कोई किसी के साथ भी फ्रेंडशिप बना सकता है, अच्छे पर्सन से बना सकता है, बुरे पर्सन से बना सकता है, किसी से भी बना सकता है। तो वही है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हेन अ F1 हाइब्रिड, दैट इज हाइब्रिड मिला हम लोगों को, पोसेसिंग 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर। अब 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर मिले थे ना, अब 2 लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला। अब ये F1 हाइब्रिड हैविंग 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर, कौन से 2 पेयर थे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल आर स्मॉल आर, ये है अपने पास F1 हाइब्रिड। सो नाउ क्या लिखा है देखो, व्हेन अ हाइब्रिड पोसेसिंग 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर फॉर्म्स द गैमेट्स। अब उन्होंने गैमेट्स फॉर्म किए, द फैक्टर इन ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर। वो कैसे भी सेग्रीगेट हो सकता है, जरूरी नहीं, इसलिए हमें उसका रेशियो कितना आया, 9:3:3:1। अगर आपको याद है तो आपने मुझे उसका पिक भी भेजा था, बहुत जनों ने अच्छा कोशिश भी किया था। ये यहाँ पे हम लोगों ने वो रेशियो कौन सा लाया था, 9:3:3:1। तो यहाँ पे क्या होता है, जरूरी नहीं है कि एक्सिलरी शुड बी ऑलवेज पेयर विथ रेड, यहाँ जरूरी नहीं कि एक्सिलरी रेड के साथ पेयर होगा। एक्सिलरी व्हेन पेयर विथ एक्सिलरी रेड के कितने आएंगे बताओ, 9। ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ सकता है, दैट एक्सिलरी मे बी पेयर विथ व्हाइट, वो किसके साथ व्हाइट पेयर होगा, व्हाइट 3 के साथ। या तो तीसरा क्या आएगा बताओ, टर्मिनल कैन बी पेयर विथ रेड, तो वो वैरायटी कितनी आएगी, 3। एंड लास्ट वन दैट इज टर्मिनल व्हाइट वैरायटी, वो कितने में आ जाएंगे बताओ, 1। तो जरूरी नहीं है कि एक्सिलरी शुड बी ऑलवेज पेयर विथ रेड, एक्सिलरी हैव चांस टू पेयर विथ व्हाइट आल्सो, एंड जरूरी नहीं कि टर्मिनल शुड बी ऑलवेज पेयर विथ व्हाइट, terminal character have ability to pair with red also, so that there may be a various chances of pairing, and that pairing is called as a independent, they are not dependent on assortment। लेकिन देखो जिसके साथ वो असॉर्ट होगा उसकी वो क्वालिटी लेगा ही लेगा। नेचर हमें, बायोलॉजी हमें ये बहुत कुछ चीजें इतने अच्छे से सिखाता है ना कि हम लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो हमको किस तरह से पेयरिंग लेना है,
जो भी जीन्स ने अच्छा अच्छा पेयरिंग लिया होगा वो एक्सिलरी और क्या आया बताओ, रेड। जो यूनिवर्स में अपीयर नहीं हो रहा है, अगर उन्होंने उनके साथ पेयरिंग लिया तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डी जनरेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब कहना क्या है कि अगर हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर को लेंगे, वर्स कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा नेचर, हमारी एबिलिटी हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे। सो वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट कैरेक्टर्स। हमको अपनी लाइफ में बेस्ट फ्रेंडशिप, बेस्ट कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करना है ताकि आप सरवाइव होए, आगे और आगे आगे जाए। सो दिस इज द लॉ विच इज स्टडीड बाय मेंडल ओनली। तो इसलिए वो यूनिवर्सल लॉ हो गया ना, इसलिए तो 12th के टेक्स्ट बुक में आया, नहीं तो वो 11th और 5th 6th 7th में आ जाता और निकल जाता था। ये बहुत सारी चीजें मेंडल ने स्टडी की जब मेंडल को कुछ भी नहीं मालूम था। मेंडल डजंट नो द जीन, मेंडल ने बस अपना काम करता गया और उसने उसे फैक्टर नाम दिया। तो अभी मैंने 10 या 15 मिनट्स में ओनली 2 लॉज एक्सप्लेन किए। अब आपको क्या एक्सप्लेन करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसे रटना, उसको लर्न करना। तो लर्न हो जाएगा अगर आपको मैंने जो बोला है वो समझ में आया तो देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या आया, व्हेन अ हाइब्रिड पोसेसिंग, ये जो हाइब्रिड था मतलब कौन सा, कैपिटल ए स्मॉल ए, या तो हमने क्या लिया था कैपिटल आर स्मॉल आर, इस वैरायटी को हम बोलेंगे हाइब्रिड। या तो हम दूसरी वैरायटी हाइब्रिड कौन से बोल सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी वैरायटी क्या होगी, हाइब्रिड। या तो और यहाँ पे मुझे डबल कैरेक्टर क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वहां उन्होंने दिया है व्हेन अ हाइब्रिड possessing two pair of, कितने पेयर लिखे हैं वहां पे, टू पेयर ऑफ व्हाट कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सिंगल पेयर में समझ में ही नहीं आएगा ना, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी, तो उसमें मुझे आइडिया नहीं आएगी कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कैसे पेयर हो रहा है। तो इसलिए मिनिमम हमको कितना लेना पड़ता है, टू पेयर। व्हेन अ हाइब्रिड पोसेसिंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और फैक्टर्स दैट फॉर्म्स द गैमेट्स एंड द फैक्टर इन ईच पेयर, हर एक पेयर में सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, दैट कैन पेयर इंडिपेंडेंटली। तो एक्सिलरी कैन पेयर विथ, किसके साथ हो सकता है, रेड, एंड एक्सिलरी कैन पेयर विथ किसके साथ होगा, व्हाइट। एंड इवन टर्मिनल कैन पेयर विथ किसके साथ होगा, रेड, एंड टर्मिनल कैन पेयर विथ किसके साथ होगा, व्हाइट। दिस इज कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेरा आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि जैसे लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, तो आप ये 2 लॉ लर्न कर दो। आपको एग्जाम एनी हाउ देना है स्टूडेंट्स, सो कैन यू मतलब कॉन्सेंट्रेट होके जिस दिन का काम उसी दिन कंप्लीट करो। तो ये हो गया, 2 लॉज हो गए। फिर उसके बाद मैंने ऑलरेडी ये आपको पढ़ाया है बैक क्रॉस एंड कौन सा क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। लेकिन जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, मेंडल वाज वेरी लकी बिकॉज ही सिलेक्टेड विच प्लांट, दैट प्लांट इज कॉल्ड एज ए पी प्लांट। तो पी प्लांट में क्या हुआ था, द 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। उन्होंने कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग लिए थे, 7। That 7 pair of contrasting character are present on 7 pair of chromosome only. वो कितने क्रोमोसोम पे थे, 7 पेयर, मतलब कितने क्रोमोसोम में थे, 14। Luckily, only 14 characters are present in that pea plant and only 14 chromosomes are present. तो मेंडल के साथ बहुत अच्छा लक काम कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है लक किसके साथ काम कर सकता है, ये तो वेरिएबल है, लक का हम कुछ डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम डिटरमाइन रहेंगे, हम सिंसियर रहेंगे, तो हमारे साथ लक काम करेगा। हमें सिंसियरली स्टडी करना है, डिटरमाइंड रहना है कि नहीं, आज मुझे फिजिक्स का ये नोट्स मिला है, केमिस्ट्री का ये मिला है, मैथ्स का मिला है, बायो का मिला है, तो मुझे आज इतना एनी हाउ करना ही है, मुझे 4 घंटा किसी भी हाल उसमें देना ही है, कॉन्सेंट्रेट करना ही है। तो मैंने आपको शायद बहुत बार ये एग्जांपल दिया है कि अगर हम किसी को लाइक करते हैं जिंदगी में, तो हम उसके लिए इतना टाइम निकालते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट को लाइक करना स्टार्ट करो, आपका फ्यूचर को आप लाइक करना स्टार्ट करो, आप अपने 12th स्टैंडर्ड से लव करो, आपको इतना वो सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा कि आप वो ऑटोमेटिकली पढ़ाई करेंगे। समझ में आया। तो ये हुआ है बैक क्रॉस, और कौन सा क्रॉस हुआ था, टेस्ट क्रॉस। लेकिन मेंडल का स्टडी करते करते बाकी साइंटिस्ट भी स्टडी करना स्टार्ट किए। हाँ, मेंडल ने ये लॉ दिया है, तो मेंडल ने पी प्लांट स्टडी किया है, तो मैं क्यों ना ड्रमस्टिक प्लांट को स्टडी करूं, मैं क्यों ना लायन को स्टडी करूं, मैं क्यों ना टाइगर को स्टडी करूं, मैं क्यों ना ह्यूमन को स्टडी करूं,
मैं क्यों ना और कोई पेरीविंकल प्लांट पढ़ाई करूं। ऐसे बाकी सारे साइंटिस्ट के माइंड में क्वेश्चन आने लगे। तो क्वेश्चन आते ही समझ में आने लगा कि नहीं, कहीं कहीं मेंडल के लॉ अप्लाई नहीं हो रहे। तो इसलिए नेक्स्ट हेडिंग आया, देखो हम लोगों का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से लॉ हो गया फुल एक्सप्लेन करके। वो फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1 इंडिकेट कर रहा है, 2 डिफरेंट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। आज ये आप पूरा पढ़ो। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेटमेंट ऑफ कौन सा हुआ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैंने टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ नहीं दिया है नोट्स आपको, अब बस रीड करना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आया, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, वो ऑलरेडी लेक्चर में लिया है। अब डेविएशन का मतलब क्या, डिड नॉट नॉट ऑन द पाथ ऑफ मेंडल। तो क्या हेडिंग दिया है देखो, डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग। few generalization were arrived by the Mendel on the basis of his experiments of which plant, garden pea plant। तो उसने एक ही प्लांट को स्टडी किया था और उससे उसने कुछ जनरलाइज्ड फॉर्मूलाज बनाए थे। जिंदगी में फॉर्मूलाज रहते हैं ना, आप एक फॉर्मूला को एक बार लर्न करते हो तो थ्रू आउट द लाइफ उसे लर्न करते हो, मतलब बताने की जरूरत नहीं, उसमें आप फॉर्मेट में उसकी इंफॉर्मेशन फिलअप करते हो। जैसे अगर आपको अभी किसी को बताया गया है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसमें कोई भी वैल्यू पुटअप करो और एक्सप्लेन करो, तो आप ऑटोमेटिकली ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में उसकी वैल्यू पुटअप करते हो। या तो अगर आपको मैंने कॉस थीटा और क्या बोला साइन थीटा, तो आप जल्दी से बोलते हो नहीं मैडम ये कॉट थीटा का फॉर्मूला, देखो मुझे अभी मेरा 12th का याद आ रहा है आपको पढ़ाते पढ़ाते। तो ये बोलने की जरूरत नहीं, एक बार हमने इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा तो ये ऑटोमेटिकली हमें आता है। आया समझ में। तो वैसे ही मेंडल ने पी प्लांट को इतना स्टडी करके एक जनरल फॉर्मूलाज बनाए थे। और वो जनरल फॉर्मूलाज क्या थे, जनरल मेंडल के जो कॉन्सेप्ट थे वो कौन से थे, सिंगल ट्रेट कैरिड बाय सिंगल जीन एंड दैट सिंगल जीन हैव अ 2 कैरेक्टर्स। तो मैंने यहाँ पे सपोज हाइट ये कैरेक्टर लिया है, हाइट। तो हाइट में कौन से 2 पकड़े थे हम लोगों ने, वन दैट इज कॉल्ड एज ए टॉल एंड अदर वन क्या लिया था बताओ, ड्वार्फ। या तो फ्लावर का पोजीशन लिया तो एक्सिलरी और क्या लिया, टर्मिनल। तो ये मेंडल का ये जनरलाइज सेंटेंस हो गया, जनरल सेंटेंसेस। जैसे हम बोलते हैं अर्थ रोटेट होता है, तो ये जनरल है ना, हम कोई देखने तो नहीं जाते अर्थ रोटेट हो रहा है, हम सन रोटेट होता है, दिन रात आ रही है, उससे हम कहते हैं कि अर्थ रोटेट हो रहा है। लेकिन इज इट राइट और नॉट, ये तो जनरल प्रिंसिपल को फॉलो करके हम आगे काम कर रहे हैं। सेम यहाँ पे दूसरा उसका जनरल प्रिंसिपल क्या था, 2 एलिल्स, ये जो 2 एलिल यहाँ के है, दैट शो इंटरएक्शन इन विच वन इज कंप्लीटली डोमिनेंट। तो मैंने टॉल और ड्वार्फ जो 2 एलिल लिए हैं, ये 2 एलिल में से एक डोमिनेंट है और एक कौन सा है, रिसेसिव। तो ये उसका सेकेंड जनरलाइजेशन फॉर्मूला हुआ कि 2 एलिल में से एक डोमिनेंट रहेगा और जो अपीयर होगा वो डोमिनेंट रहेगा। और तीसरा जनरल प्रिंसिपल क्या उसने रखा कि दैट इज 2 डिफरेंट ट्रेट आर प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम। उसका कहना था कि ये हाइट का जो कैरेक्टर है ना 7 नंबर क्रोमोसोम पे है, तो 7 नंबर के ए पे रहेगा और 7 नंबर के बी, मतलब एक पैटर्नल पे रहेगा और एक मैटरनल पे रहेगा। तो उसका कहना था ये मिक्स नहीं होंगे, ये जो जीन्स के कैरेक्टर है दैट ट्रेट आर प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम एंड सो दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ये 3 फंडा को देख के, ये 3 फॉर्मूलास को देख के, ये 3 लॉजिक को देख के बहुत सारे साइंटिस्ट पढ़ाई कर रहे थे। सो विथ द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम चलता गया साइंटिस्ट पढ़ रहे थे, पास टाइम आगे आगे चलता गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ डेविएशंस वेर ऑब्जर्व। अरे जो मेंडल बोल रहे हैं वो मुझे इस प्लांट में नहीं मिल रहा है, इस फ्लावर में नहीं मिल रहा है, तो शायद ये यूनिवर्सल फॉर्मूला तो नहीं होगा। अगर सन रोटेट हो रहा है और अर्थ भी रोटेट हो रही है तो दोनों का कुछ तो कहीं मैचिंग आना चाहिए, लेकिन सीजनल चेंजेस बराबर अल्टरनेट होते हैं, समझ में नहीं आता। तो फिर हम आगे और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सो दैट डेविएशंस वेर ऑब्जर्व आइडेंटिफाइड इन द पोस्ट मेंडेलियन इरा। तो मेंडल के बाद साइंटिस्ट ने स्टडी किया, सो that is called as a post Mendelian era, or that deviations are also called as described as neo Mendelism. Neo मतलब after Mendel है ना, so that is called as a neo Mendelism.
सो देखो यहाँ पे मैंने डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग्स दिया है, उसमें एक ही डेविएशन दिया है, आगे आपको सेकंड एंड थर्ड भी डेविएशन नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर बाद में नेक्स्ट वन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मैंने एक्सप्लेन किया, द सम डेविएशंस व्हिच आर ऑब्जर्व्ड एंड आइडेंटिफाइड इन अ पोस्ट ऑफ मेंडल, so that are called as a neo-Mendelism. So what happened here? The phenotypic expression of gene can be modified by other gene. कोई और जीन भी उसको एक्सप्रेस करता है, उसका कैरेक्टर चेंज करता है। So आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है टेक्स्ट बुक के हिसाब से। तो phenotypic expressions are of 2 type. What are that 2 type? One is called as a interagenic interaction and other one is called as a intergenic. तो दोनों के टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, इंटराजेनिक इंटरैक्शन इज बिटवीन द एलील ऑफ सेम जीन, 2 एलील के मतलब सेम जीन में रहेगा। सो दैट इज एक्सप्लेन विद एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ये एग्जांपल है, ये हम आगे लेते हैं। मतलब एक समझो कि यहाँ पे जो एलील का इंटरैक्शन हो रहा है वो इंटरैक्शन 2 टाइप का हो रहा है। कौन से 2 टाइप का? इंटरा मतलब बिटवीन सेम, बिटवीन दिस सेम जीन, इंटरा मतलब इनसाइड सेम, एंड जेनिक मीन्स सेम जीन। तो सेम जीन में इंटरैक्शन हो रहा है, दैट इज 1 टाइप ऑफ इंटरैक्शन। एंड अनदर सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज इंटर, इंटर दैट इज बिटवीन 2 डिफरेंट एलील। सो इंटरैक्शन बिटवीन द एलील ऑफ डिफरेंट जीन। तो 2 डिफरेंट, वो जो हाइट ले रहे हैं हम लोग कैरेक्टर, उसमें जो जीन है उसके 2 डिफरेंट जीन्स में जो इंटरैक्शन हो रहा है, जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जो कैरेक्टर मिक्स हो रहे हैं, उसको हम कहेंगे इंटरजेनिक इंटरएक्शन। इंट्रा मतलब हाँ कॉमनली हम बोलते हैं ना इंट्रा कास्ट मैरिज। इंट्रा कास्ट मैरिज का मीनिंग क्या होता है? इन बिटवीन सेम कास्ट। तो इसका मतलब क्या कहेंगे? सपोज मराठी गर्ल है तो मराठी बॉय से मैरिज करेगी, तो दैट इज कॉल्ड एज ए इंट्राजेनिक। लेकिन इंटरकास्ट मतलब क्या होगा? सपोज कोई मराठी गर्ल है तो गुजराती बॉय से शादी करेगी, तो दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरजेनिक। तो बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीसीज आया ना यहाँ पे। तो सेम लाइक occurs between the alleles of different genes present on same और different chromosome। तो एक ही क्रोमोसोम पे दूसरे जीन में भी उनका इंटरैक्शन हो सकता है, या तो दूसरे क्रोमोसोम पे दूसरे जीन से हो सकता है। सो उसके बुक में एग्जांपल दिए है प्लियोट्रॉपी। जस्ट ये वर्ड समझो, धीरे धीरे आपको आएगा। पॉलीजीन्स, इपिस्टासिस, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम में आता ही है ना, 180 डिग्री होने के लिए जो आप करते हो, दैट एंगल्स आर कॉल्ड एज ए सप्लीमेंट्री एंगल और दे आर आल्सो कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ यस, last time. okay, thank you. Neo-Mendelism. So Neo-Mendelism explain what expression? Phenotypic expression. What are that type of phenotypic expression? One is called as a intragenic, another one is called as a intergenic. तो मैं 5 मिनट में ना आपको इंट्राजेनिक कोशिश करती हूँ। हाँ, उसके फर्स्ट एग्जांपल है मल्टीपल एलील, या उसका एग्जांपल क्या आया? मल्टीपल एलील। सेकंड क्या दिया है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड थर्ड है कोडोमिनेंस। मैं पहले इनकम्प्लीट देखो, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन मतलब न्यू मेंडलिज्म में आया। हाँ, तो मेंडल के बाद के जो एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं वो हम शेयर कर रहे हैं। तो उसमें पहला इनकम्प्लीट का मतलब क्या? पूरा कंप्लीटली अपीयर नहीं हो रहा है। तो देखो फास्टली थोड़ा लेते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको बोर्ड में 2 या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। सो व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? बिटवीन द जीन्स एक्सप्रेस पार्शियली। वो पूरा अपना रेड कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, या तो पूरा अपना व्हाइट कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस कर रहा है। तो बोथ जीन एक्सप्रेस कैसे हो गए? पार्शियली। वन जीन कैनॉट सप्रेस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन कंप्लीटली। एक जीन दूसरे जीन के कैरेक्टर फुल्ली क्या नहीं कर पा रहे? बताओ, सप्रेस नहीं कर पा रहा है। सप्रेस होगा वो इससे से होगा ना, लेकिन वो उसको पूरा छाप नहीं सकता, पूरा दबा नहीं सकता। सो उसकी वजह से क्या होता है? जो दब नहीं रहा है, जो सप्रेस नहीं हो रहा है, वो अपना भी कैरेक्टर दिखाता है। तो इसका मतलब दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो दोस्तों दोनों मिक्स होना मतलब इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन। दोनों का कैरेक्टर आने की वजह से वो F1 जनरेशन क्या दिखाएगा?
intermediate. A well-known example is Mirabilis jalapa. अब यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया है, टेक्स्ट बुक का ही नेम है मिराबिलिस जलापा, यहाँ पे आप देखेंगे तो। लेकिन इसको ना गुलबख्शी करके यहाँ पे कॉमनली पर्पल कलर का फ्लावर आता है, और वो अभी रेनी सीजन में नहीं मिल रहा होगा, लेकिन देखो हमको विंटर सीजन में मिलेगा। और वो फूल गिरने के बाद है ना, उसके नीचे ऐसा ब्लैक 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 पेपर के जैसा एक सीड आता है। वो फूल गिर जाएगा लेकिन वो सीड उधर ही रहता है। तो जस्ट अभी ये फास्टली हो जाएगा, देखो 2 मिनट में मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट लिया, कौन सा पेरेंट लिया, देखो रेड फ्लावर, क्रॉस विथ किसके साथ किया, व्हाइट फ्लावर। ये उसका फिनोटाइप हुआ ना, रेड फ्लावर प्लांट इज कॉल्ड एज अ फिनोटाइप। अब उस रेड फ्लावर प्लांट का जीनोटाइप क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल आर। व्हाइट फ्लावर प्लांट का जीनोटाइप क्या लिया हम लोगों ने, स्मॉल आर स्मॉल आर। व्हाट दे प्रोड्यूस, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किए, गैमेट्स। क्या गैमेट्स आए, कैपिटल आर, और इसके गैमेट्स क्या आए, स्मॉल आर। नाउ व्हाट हैपन, नाउ दिस F1 फ्यूजन होगा तो हमें कौन सी वैरायटी मिली, F1 वैरायटी। बट वो कैसी है, हाइब्रिड। अब हाइब्रिड में उसका कौन सा कलर आया, रेड आना चाहिए था ना मेंडल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे कौन सा कलर आया है, पिंक कलर आया। मतलब रेड पूरा डोमिनेंट नहीं हुआ व्हाइट के ऊपर, या तो व्हाइट पूरा सप्रेस नहीं हुआ रेड की वजह से, और ये कैरेक्टर दिखा रहा है पिंक। अब जब हम F1 जनरेशन को क्रॉस किए, सेल्फिंग किया, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विथ ईच अदर, तो इसके गैमेट्स अभी आपको चेकर बोर्ड से ये क्लियर हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें अगर हम डेली वही टाइम पास करेंगे ना तो हमारा लेक्चर आगे नहीं जाएगा। आई थिंक ये सबको क्लियर है अभी, आर आर क्रॉस विथ ईच अदर, रेड। कैन यू गेटिंग माई पॉइंट्स, प्लीज गिव मी द आंसर बाय चैट। आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है क्या, हम क्या ले रहे हैं, नो तो नो, यस तो यस। हाँ, थैंक यू, यस थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो देखो यहाँ पे क्या आया, रेड। नाउ कैपिटल आर स्मॉल आर मीन्स हमने क्या स्पीसीज, थैंक यू दीक्षा, तो कौन सा स्पीसीज लिया हम लोगों ने, पिंक, तो ये भी पिंक स्पीसीज आया। एंड नेक्स्ट वन दैट इज आर आर मीन्स क्या है यहाँ पे, व्हाइट। So what happened here? The intermediate ratio, दोनों का जो रेशियो आया, फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक, that is 1:2:1। तो क्या दिख रहा है, देखो आर आर 1 आया, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 1 है। मेंडल के हिसाब से फिनोटाइपिक रेशियो क्या आना चाहिए था, 3:1, लेकिन 3:1 नहीं आया। क्या आया रेशियो, देखो 1:2:1। 1 is red variety, second is pink, 2 pink variety, and third one is the white। तो क्वेश्चन मार्क आया ना, अरे मेंडल तो बोल रहा था फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन से फ्लावर में, जस्ट टाइप में, किसी को याद आ रहा हो तो, हमने क्या फ्लावर को बोला था, मिराबिलिस जलापा। विच फ्लावर वैरायटी वी सिलेक्टेड, दैट इज कॉल्ड एज ए मिराबिलिस जलापा। तो चलो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर ही लेते हैं और कल फिर कोडोमिनेंस स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप क्या करेंगे, जिसको आंसर करना है ना वो ही अनम्यूट करेगा, हाँ, बाकी सब मतलब म्यूट ही रहेंगे, एक ही जन अनम्यूट करेगा। अनम्यूट भी कर सकते हो आप लोग, अभी ना थोड़ा प्रोसीजर चेंज करो ताकि इतना टाइप करने में टाइम जाएगा ना। सो एनी वन ऑफ यू ट्राई टू गिव मी द आंसर, which 3 laws are proposed by Mendel? Which 3 laws are proposed by Mendel? कोई कोई अब भी ज्वाइन हो रहे हैं। Law of inheritance, हाँ, yes, law of segregation, and law of individual assortment. Who have given me the answer? Ma'am Riddhi. Okay, now give chance to other person also. Anyone? Yes. Abhinav, which law proposed by Mendel? Very good, Diksha, shabash. Anyone? If possible to give answer by chat then also. So why law of, yes, Shambhavi, good. Can you try to give me the answer? Yes, Safa. Why law of segregation is called as good? Krushika, very good.
Why law of segregation is called as a law of purity of gametes? What is the reason why this law is called as a purity of gametes? Because the gametes formed are pure in that. Yes, how that gametes form are pure, how they maintain their purity. They carry only one They gamete. carry one on allele. Hmm. They have capacity to what? Even they have capacity to separate from each other. During gamete formation वो कौन सा दिखा रहे हैं? Separation. Segregation है ना? So they carry only one allele or they separate from each other. हाँ, just now give me the answer. Is law of dominance is universal? Can you think? Law of dominance should be universal. Yes or no? Just only one word all of you have to type. What do you think? Is law of dominance should be universally? Ah yes, Shabash. Why it should not be universal? One girl has given me the answer no. If other one have a yes answer, then why yes? If yes, then why yes? And if no, then why no? Can you get my question? Why law of dominance is or why law of dominance is universal or not universal? Is law of dominance is universal? अब भी हमने एक ही एग्जांपल लिया, उसी से आपको आना चाहिए. What is law of dominance? The character which is appear in F1 generation is called as a dominant. And the character which is not appear in F1 generation is called as a recessive. This is proposed by Mendel. But in law of, हम लोग कौन सा एग्जांपल लिए? Mirabilis jalapa. So in the Mirabilis jalapa, one character which is not dominant, यहाँ पे red character कहाँ dominant हुआ है? या तो यहाँ पे white color कहाँ character कहाँ suppress हुआ है? Fully suppress हुआ है क्या? No. That means in all plants this law is not applicable. यूनिवर्सल का मीनिंग क्या होता है कि हर प्लांट में हर एनिमल में ये लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए. ओके, सो दैट मीन्स विच लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल. तो अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है तो कौन सा लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सकता है? यस,